Good morning, student. I'm Rajendra Simuri, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapeeth Mova. Again, welcome all of you in this online session of the class 6 mathematics, and today we will learn about the whatever we discussed into the earlier part, that is the body mass and the all three properties. Just we get it the review of it, and then after we will move on to the another one point. In the last session, in the live session, we discussed about the all three properties, closure properties, commutative properties, and third one is the associative property. After these three property, we also discussed about the BODMAS rule, and that is also we know that then bracket, then bracket of division, multiplication, addition, and subtraction. That is the rule of BODMAS. And BODMAS at the last. Now we are going for the we just get it the review whatever we discussed into the last portion. So let us start with it. First of all, this is the properties of the whole number. What is the closure property? किसको हम closure property कहते थे? Just we have to using like that. When two whole numbers are added or multiplied, the answer is also whole number. So 3 plus 5 is equal to 8 and 3 into 5 is equal to 15. तो जब भी दो होल नंबर्स का एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका आंसर जो भी आता है that is always be a whole number. So that is a closure property. Second one is considered the associative property. Inside the associative property, we can say that for addition and multiplication, the answer is the same no matter हाउ वी ग्रुप द नंबर्स. अब कोई भी नंबर्स का हम ग्रुप करते हैं, बट उसमें जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब उसके आंसर में कोई भी फर्क नहीं आता. मतलब वॉट एवर द आंसर फॉर मेकिंग द डिफरेंट ग्रुप्स, ऑलवेज इट गिव्स द सेम आंसर. सो 3 + 5 + 2 का ग्रुप है या 3 + 5 का ग्रुप बना दो, दोनों का आंसर 10 ही आता है. वैसे ही उसका मल्टीप्लिकेशन भी आप देख सकते हो कि 3 × 5 + 2 5 × 2. सो 5 × 2 का एक ग्रुप बना है, तो दूसरे में 3 × 5 का ग्रुप बनता है. फिर भी इसका आंसर जो होता है वो 30 ही होता है. सो दैट इज द रूल ऑफ एसोसिएटिव. एंड थर्ड वन वी आर कंसर्न दैट commutative property is there, and inside that commutative property we just learn about some of the things are that changing the order of numbers. किसी भी नंबर का यदि हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते, then also be same answer will be into the part of addition and multiplications, does not change the answer. मतलब वो कभी आंसर में चेंज नहीं होगा. यदि हम 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, 3 × 5 करें या 5 × 3 करें, मतलब 3 × 5 करें या 5 × 3 करें, उसका आंसर सिमिलर ही होता है 15 और 8 रिस्पेक्टिवली. So these are the three particular properties of closure, associative and commutative properties. Now let us move on to the another thing. Now we are showing the last at the BODMAS rule. So what is the order of operation is given into the BODMAS. हमने live session में भी देखा था कि how can we solve out this BODMAS. Just we are using here that BODMAS, it is a bracket. फर्स्ट बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. सो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का एक ग्रुप हुआ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक ग्रुप हुआ. पहले हमें कोई भी आंसर देते हैं तब एक साथ में, जब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तब हमें पहले ब्रैकेट को छोड़ना है, फिर जो भी डिवीजन दिखे वो डिवीजन साइन को हैंडल करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करना है, फिर एडिशन को हैंडल करना है, और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो दिस इज द रूल फॉर एडिंग हियर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इनसाइड द BODMAS rule. So these things we already discussed. Now let us move on to the newer point. Now after all the rules of closure, associative and commutative property and BODMAS, now we are going for the another one property, that is knowing about the distributive property. The property number 4,
ऑलरेडी थ्री प्रॉपर्टी और बॉडमास रूल ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द अनदर वन पार्ट्स, दैट इज द distributive property. Now what it suggests here, distributive property means what? Just here given that inside the distributive property requires distributing the numbers outside the bracket with each number inside the bracket. मतलब हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है. किस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट होते हैं उसके साथ इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट का नंबर जो होता है उसमें हमें उसकी वो नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडर्ड हियर दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 into 3 plus 2. So 4 into 3 plus 2 मतलब 4 is the outside of the bracket and 3 plus 2 is the inside of the bracket. So can be written is 4 into 3 plus 2. 4 को 3 के साथ और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो हम यहाँ पे देख सकते हो, आपको साइन भी दिखाई दिए है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, पहले 4 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट नंबर है वो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट के एक पहले टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 into 3. फिर होगा प्लस, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, फिर से 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दो ग्रुप बनाना है, 4 into 3 plus 4 into 2, like that way. Here consider 4 into t and 4 into 2, so that's why 4 into 3 and 4 into 2 के बीच में एडिशन की साइन है तो यहाँ पे एडिशन की साइन रहेगी. तो ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 into 3 plus 4 into 2. So let us see that is it true or wrong. अब देख सकते हो कि यहाँ पे 4 into 3 plus 2 को हम ऐसे इंडिकेट्स कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, तो इसका आंसर आता है 4 into 3 plus 4 into 2. अब आप देख सकते हैं कि 3 plus 2, यहाँ पे 3 ग्रीन है और 2 ब्लू पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं. तो 3 plus 2 का मतलब होता है 6 ऑब्वियसली. और हम जो यूज कर रहे हैं 3 plus 2, ऐसे कितने हमारे पास पिक्चर होने चाहिए? टोटल 4. तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि 3 plus 2 का टोटल 4 पिक्चर. दैट विल गिव्स अस टू द 3 plus 2 मतलब 5, 5 4s are 20. So it will gives us to the total number of pictures shown in this particular figure, that it covers the total number of is 20. सिमिलर वे वी आर गोइंग दैट, ये सही है कि नहीं, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. अब आप देख सकते हो 4 into 3 मतलब यहाँ पे तीनों दिन जो पिक्चर्स है वो कितनी टाइम है? 4 टाइम. फिर हम देखते हैं प्लस 4 into 2 यानी 4 into 3 होता है 12 और 4 into 2 होता है 8. 12 और 8 दोनों को एडिशन कर दो तो वो भी कितना होता है? 20 होता है. तो दैट इज अ ट्रू, ये पूरा ट्रू है. आप देख सकते हो 4 into 3 plus 2 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो करेक्ट है. 4 into 3 plus 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 into 3 plus 4 into 2 इन द सेकंड ब्रैकेट. तो इस तरीके से दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं होता एडिशन में. ओके, इसी तरीके से हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से बॉडमास रूल को यूज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है बॉडमास रूल में. So let us solve this 3 into 6 plus 12 using BODMAS and using the distributive property. आप BODMAS से भी सॉल्व करो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करो. अब पहले हम BODMAS से उसको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. 3 into 6 plus 12. तो 3 into 6 plus 12 को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसका मतलब क्या हम यहाँ पे इंडिकेट्स करेंगे कि जब BODMAS यूज करेंगे तो हम ब्रैकेट को निकाल देंगे. ब्रैकेट को निकालेंगे मतलब 6 plus 2 को हमें निकाल देना है. 6 plus 2 को जब हम निकालेंगे तो हमारे BODMAS में पहले डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन आता है और सब्ट्रैक्शन आता है. तो हम देख सकते हैं कि पहला 6 plus 12 हम जैसे ब्रैकेट निकाला तो 6 plus 12 का एडिशन हो जाएगा. एडिशन कितना होगा? 18. 12 plus 6 कितना होगा? 18. 18 into 3 that's why we got 54. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? पहले टर्म्स को सेकंड टर्म के साथ और फर्स्ट टर्म को फिर से सेकंड टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट
हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू सिक्स प्लस 3 इंटू 12, तो यहाँ पे आपका दो ब्रैकेट बन जाएंगे, 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 12, 18 प्लस 6 36, 3 6 जार 18 होता है और 12 3 जार 36 होता है, सो वी गॉट 54 इज दैट. So from the above example, we can see that a number outside the bracket can be shared with each number inside the bracket without changing the result. This is called the distributive property of multiplication over addition. मतलब इसी टाइप को, इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं. आप देख सकते हो कि जब हम पहले पोजीशन के ऊपर 3 इंटू 6 प्लस 12 करते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है 3 इंटू, फिर 6 प्लस 12 का एडिशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसको बोलते हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नोन एज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन होता है बट किसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है? एडिशन के ऊपर. एडिशन हो जाए बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा कहने का मतलब होता है. तो ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बॉडमास से कैसे सॉल्व होता है ये एग्जांपल, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व होता है. नेक्स्ट वन वी आर कंसर्न हियर दैट केस वन इज दैट हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूटिव यूज दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 25 into 123, this is not in the form of distributive property. अब ये 25 और 123 और distributive property में नहीं है. So write the expanded form the number that is difficult to multiply. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 एंड 123 को जो नंबर हमें डिफिकल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन करने में, हम उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे वो नंबर को. जैसे कि हमारे पास 123 है, उसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है 100 प्लस 20 प्लस 3, दैट यू नो. 100 में 20 ऐड करो तो 120 होता है, 120 में 3 ऐड करो तो 123 हो जाता है. तो 123 की जगह हम रख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 3. तो ये हुआ पूरा एक्सपांडेड फॉर्म. अब एक्सपांडेड फॉर्म हुआ तो उसके साथ 25 हर एक ब्रैकेट जो इनसाइड है ब्रैकेट में, उससे आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट नंबर यानी 25 से मल्टीप्लाई करना है और ग्रुप बना देना है. 25 इंटू 100 प्लस 25 इंटू 20 प्लस 25 इंटू 3, ये तीनों चीज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ये तीन ग्रुप. 25 को पहले 100 के साथ, 25 को फिर 20 के साथ और लास्ट में 25 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. So we have to got here 2500 plus 500 plus 75. So we got 3075. That is the answer of it. तो इस तरीके से पहले केस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हैंडल कर सकते हैं. उसमें जो बड़ा नंबर आपके पास हो तो उसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे. एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के बाद हर एक नंबर को जो ब्रैकेट के इनसाइड है उसको आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. Very simple. So that is first case is there. Next one case 54279 यानी 54,279 into 92 plus 8 into 54,279. तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ के फाइंड द कॉमन नंबर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. इसमें जो कॉमन नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 54,279 है, दोनों में कॉमन है. कॉमन मतलब एक जैसे, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, क्योंकि प्लस के लेफ्ट साइड में और प्लस के राइट साइड में कौन से नंबर कॉमन है, दैट वी हैव टू गोइंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड. उसको ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पहले उस दोनों में से कॉमन निकाल दिया 54279, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी जो बचता है वो 92 प्लस 8 बचेगा. क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है वो दोनों तो कॉमन निकल गए 54279. तो 54279 कॉमन निकल गया तो बाकी बचता है 92 प्लस 8. अब दोनों को मल्टीप्लाई करो. 542 प्लस 8 होता है 100. 100 को मल्टीप्लाई करो तो सीधा हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो दिस इज द केस नंबर 2. ये कभी आपको दो नंबर
दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में यदि कॉमन रहता है तो उसको ही आप डिस्ट्रीब्यूट करो. सो दैट इज द केस नंबर 2. नाउ केस नंबर 3 इज दैट तीनों तीन नंबर्स में आप देख सकते हो 3845, 5782, 769, 25 एंड 218. ये तीनों नंबर्स में ये सभी नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब हर साइड तीन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. So represent a number in the different ways to form a common number. Common numbers को हम consider करेंगे कैसे? Just we have to check it out. आप देख सकते हो कि 769 into 5 into 5 यानी 25 करने से 769 into 25 करने से हमारे पास आंसर रहता है 3845. तो हम क्या करेंगे 769 into 25 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि आप अपने बुक में भी 769 इंटू 25 करने से इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आपका आंसर भी 3845 ही आएगा. आप चेक कर सकते हो अपनी रफ बुक में भी. तो यदि आपने ये चेक किया बाद में आपका आंसर आता है 3845, यानी दो चीज सिमिलर हुई. 769 इंटू 25 और ये जो हमारी हमें हमें जो बात कर रहे हैं वो 769 इंटू 25, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर है. तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना 3845 की जगह हम लिखेंगे 3769 इंटू 25. तो दोनों जगह 25 आ जाएगा, तो हम कॉमन इसको निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में लाइक दैट 769 इंटू 25. फिर बाद में बचता है 782 प्लस 280. ये दोनों का टोटल करेंगे तो 1000 होगा. तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमारे पास 1,92,25,000 जैसा आंसर हमारा मिल जाएगा. सो दिस इज द केस नंबर 3. ये सभी केस को एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखना है. सो यू हैव टू राइट इन ऑल द केसेस इन योर फेयर बुक ऑल्सो. Is it clear? So this is the case number 3. Now we are going on to the another points of it. Let's move on it. So now this is the NCERT page number 39. Today you have to perform this all three questions in homework. क्योंकि today we discussed about the distributive property. आगे हमने जो कुछ लिया था उसका रिवीजन किया और लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ली है. ये तीनों तीन क्वेश्चन है वो आज होमवर्क में आपको करना है. 15 इंटू 68, 17 इंटू 23, 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69. ये सब में से दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के द्वार पे दिखाई देता है. और थर्ड वन क्वेश्चन जो है, मतलब पहले इस चीज़ समझ लो कि तीनों तीन क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है. उसमें से दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया है, वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट समझ के लिखना है, रूल के साथ लिखना है. और थर्ड वन है वो अपने आप आपको परफॉर्म करना है. तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा. दूसरी चीज़ जो मैंने आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाई, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जो वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एंड ऑल थ्री केसेस विथ द एग्जाम्पल आपको लिखना है. तो टोटल दो होमवर्क हुए. फर्स्ट होमवर्क दिस ऑल थ्री क्वेश्चन A, B and C you have to perform, and second thing all three cases of the distributive property with the example you have performed today. I hope that you understood all these things as a new concept. Distributive property you learn well, practice hard on it, and if you require any kind of the query, just you ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.